Hello, good morning student. So today we are going to discuss the next topic what we have left in the previous video. So let's discuss it here. The next topic is heterotrophic nutrition. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and the availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary or mobile would allow for a differences in how the food exists and what is the nutritive apparatus used by a cow and the lion. There is a range of strategy by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Examples are the fungi like bread molds, yeast and the mushrooms. Others take in the whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and the broken down depends on the body design and the functioning. Some other organisms derive nutrition from the plants or animals without killing them. This parasite nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, which is amoeba, ticks, lice, leeches and the tapeworms. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से मतलब ये है कि जो न्यूट्रिशन है वो किसी और पे डिपेंड होता है, यानी जिस तरह के एनिमल्स या ह्यूमन बींग होते हैं, ठीक है, ये इनके एग्जांपल आप मान सकते हैं। इस सपोज सब जैसा हमारा जो खाना है ये कहीं ना कहीं किसी और पे डिपेंडेंट है। हम एनिमल्स, वेजिटेबल्स और इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, तो हम किसके अंदर आएंगे? हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स के अंदर आएंगे। और या फिर हम कहें तो ये जो न्यूट्रिशन है ये इस काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर कई तरह की चीज़ें हैं, मतलब अगर जो हम खा रहे हैं कई बार वो बाहर पहले उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर हम डायरेक्ट उसकी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और कई बार कैसा हो रहा है कि हम उस चीज़ को खा रहे हैं फिर वो हमारे अंदर जाके उसका जो भी रस है, जो भी हम खाते हैं उसका जो भी जूस मटेरियल है वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है और वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सक्रीट करती है। इसके अलावा और भी ऐसे हेट्रोट्रॉपिक एनिमल हैं जो कि पैरासाइट हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो हम पे बेस्ड हैं। और ये किस तरह से होती है, लाइक अगर मस्कीटोज़ की बात की जाए या टेपवर्म्स की बात की जाए या लीचेस की बात की जाए या टिक्स या लाइस की बात की जाए, तो ये किस तरह से ये बेसिकली हमारा खून चूस के, या तो एनिमल्स पे बैठे या ह्यूमन बीइंग पे बैठे, किसी भी चीज़ पे जब ये उनका खून चूस के ज़िंदा रहते हैं, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि सबकी बॉडी का फंक्शन, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है या जिस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये डिफ़र करता है एनिमल टू एनिमल और उसकी बॉडी फंक्शन के हिसाब से। अब चलिए देखते हैं हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं वो देखा जाएगा। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in a various organism. In single-celled organism, the food may be taken in by the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different function. For example, amoeba takes in food using a temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into a simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm, and the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In the paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has definite shape and food is taken into the specific spot. Food is moved to the spot by movement of cilia which cover the entire surface of the cell. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है अमीबा और पैरामेशियम की। तो इनका जो है ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इनका फूड जो है ये डायरेक्टली लिया जाता है पूरे। बेसिकली अगर अमीबा की बात की जाए तो फूड जो है ये लेता है अपनी एंटायर सरफेस पे। इसके बाद जो है ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में जाके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जिसकी तरह से वो परफॉर्म करना शुरू करता है, और एक टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है जिसकी हेल्प से वो फूड पार्टिकल को वॉक्यूल्स में भेजता है। उसके बाद वो डाइजेस्ट होती हैं और पर्टिकुलरली वो एज अ वेस्ट मटेरियल जो भी उनका बचता है वो एक्सक्रीट होता है। इसी तरह से कुछ ही जो है पैरामेशियम का भी है, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें एक जब हम पैरामेशियम की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जाता है, वहाँ पे इसका जो भी है ये ब्रोकन डाउन होता है, डाइजेस्ट किया जाता है और फिर उसके बाद ये मूवमेंट करता है फूड मटेरियल सीलिया की हेल्प से, और ये जो है पूरे इसके एंटायर सरफेस ऑफ सेल पे होता है। तो इस तरह से बेसिकली जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है।
अगर मैं ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग की भी बात करूँ या अदर एनिमल्स की बात करूँ तो सबका भी जो सबका जो बेसिकली जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है ये सबका अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं तो क्या होता है, स्टमक में वो चीज़ों का डाइजेशन होता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और इनके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर वॉल्स होते हैं। इनसे वो रस को निचोड़ता है, जो भी हमने खाया है उससे वो जूस मटेरियल निकाला जाता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, फिर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट वो उस चीज़ों को फिलअप किया जाता है। नाउ वी सी द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब चलिए देखते हैं जो ह्यूमन बीइंग है उसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस इन फिगर 6.6. We can see that the tube has different parts, various regions are specialized to perform different functions. What happened to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारा कुछ रीड करूँगी और इसके बाद आपको जो एग्जैक्ट प्रोसेस किस तरह से हमारी बॉडी में हो रहा है वो मैं बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस चीज़ को आप देख लें अच्छे से, बॉडी के जो पोर्शन है जिनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। देखिए टंग से शुरू करते हैं, टंग, माउथ, एसोफेगस, डायफ्राम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स, पेनक्रियास, बाइल डक्ट, लिवर, गैल ब्लैडर and diaphragm, which we have already seen. So this is a human alimentary canal. So let's start here. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to the generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wet to make its passage smooth. When we eat something, we like our mouth waters. This is actually not only the water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. Another aspect of the food we ingest its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into a smaller molecule. This is done with the help of biological catalyst called the enzymes. This saliva contains an enzyme called salivary amylases that breaks down the starch, which is a complex molecule, to give a simple sugar. The food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when the food enters it. The muscular wall of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juices. The digestion in stomach is taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin, and the mucus. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. We often have heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? The exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscle, which releases it in small amounts into the small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the largest part existing coiling. The length of the small intestine differs in a various animals depending on the food they eat. Herbivores eating a grass need a longer small intestine to along the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence the carnivores like a tiger have a shorter small intestine. The small intestine is the site of complete digestion of the carbohydrate, protein and fats. It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. Bile juice from the liver accomplishes this addition
to acting on our fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for the enzyme to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to emphasizing the action of soap on dirt that we have learned about in the chapter 4. The pancreas secretes a pancreatic juice which contains the enzymes like trypsin for digesting proteins and the lipase for a breaking down. Emulsified fats, the walls of the small intestine contain a glands which secrete an intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the protein to the amino acid complex carbohydrate into a glucose and fats into a fatty acid and the glycerol. Digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has a numerous finger-like projections called villi, which increases the surface area of absorption. The villi are richly supplied with a blood vessel which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up a new tissue and the repair of a old tissue. The unabsorbed food is sent into the large intestine where it will absorb more water from this material, and rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. अब देखिए यहाँ पे जो है पूरी तरह से डाइजेशन किस तरह से हेल्प करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। आपने सुना होगा जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेरेंट हमें क्या कहते हैं कि जो भी आप खाना खा रहे हैं आप उसे चबा के खाइएगा, यानी खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं जब हमारे मुंह में, उसके बाद ही वो हमारी बॉडी में अंदर जाए। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये हमारे मुंह से शुरू होता है। जो भी हम खाते हैं, ठीक है, वो हमारे मुंह में जब हम उसे चबाते हैं तो हमारी बॉडी में हमारी माउथ से सलाइवा निकलता है। या फिर जब भी कोई हम टेस्टी फूड देखते हैं तो टेस्टी फूड देखने के बाद उससे क्या होता है हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जो पानी आता है उसे हम सलाइवा कहते हैं, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये सलाइवा हेल्प करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ अ डाइजेशन। जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं या चबाते हैं तो हम जब चबाते हैं तो सलाइवा उस मटेरियल में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद जब हम उससे घोटते हैं यानी जब हम उससे निकलते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो वह हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद कई तरह के एसिड्स जो हैं, जो कि HCl एक एसिड है, इसके साथ साथ और कई तरह के जो एसिड्स होते हैं ये बेसिक है, इसके अलावा और भी कई होते हैं जो सिक्रीट होते हैं और फिर उस खाने को बेसिकली डाइजेशन करने का काम करते हैं। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके होने के बाद क्या होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरसेलुलर वॉल होता है उसमें छोटे छोटे जो होते हैं क्या होते हैं होल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से क्या करता है वो सारा मटेरियल जो हमने खाया है उससे जूस जो है उसका अब्जॉर्ब करता है, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद क्या करता है उस चीज़ को वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है और उससे जितना ज़्यादा हो सके वाटर लेवल उससे ऑब्जॉर्व किया जाता है, और फिर जो फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनल स्फिंक्टर। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा खाना जो है वो प्रॉपरली पचा नहीं है, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं हुआ है, या मुझे एसिडिटी हो रही है या गैस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? देखिए, खाना जो होता है जो हम खाते हैं फूड मटेरियल हमारा प्रॉपरली चबा के हमें खाना चाहिए। अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं, अगर हमने उसे प्रॉपरली चबाया नहीं और डायरेक्टली हमने उसे स्वॉलो कर लिया है तो बॉडी में जाके उसका डाइजेशन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। जब उसका डाइजेशन हो पाना बहुत मुश्किल होगा तो आपकी तबीयत ख़राब लगेगी, आपको भारीपन लगेगा, आपके पेट में जो है बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, एसिडिटी प्रोड्यूस होगी। इवन अगर आप भूखे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है काफ़ी देर तक और पेट को पचाने के लिए कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, तो कंटिन्यूसली उसमें जो एसिड सिक्रेट हो रहा है उसकी वजह से भी आपको गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें महसूस होगी। जब भी आप कोई ऑयली फूड खा रहे हैं तो इस सारी चीज़ों से क्या होता है एसिडिटी क्रिएट होती है। तो इन सारी चीज़ों को सही रखने के लिए हमारा सही तरह से खाना यानी हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। प्लस जब भी हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसे प्रॉपरली च्यू करें, यानी उसका जो चॉइबल है वो काफ़ी ज़्यादा महीन तरीके से, यानी जो भी हम खा रहे हैं उसे काफ़ी अच्छी तरीके से हम चबा के खाएँ। तीसरी बात, जब भी हम खाना खा लेते हैं तो पानी एक प्रॉपर मात्रा में हमें पीनी है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से भी जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी हमारे पेट में दर्द होगा, थोड़ा डाइजेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो खाना खाने के बाद एक फिक्स अमाउंट का पानी जितना हमारी बॉडी डिमांड कर रही है हम उतना ही पिएंगे। इस तरह से जो है ये पूरी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ वी सी द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। सबसे पहले हम उस एक्टिविटी को देख लेते हैं।
I'm gonna read that one here. Take some freshly prepared lime water in the test tube. Blow air through this lime water. Note how long it takes for the lime water to turn milky. Use a syringe or a pichkari to pass air through the same fresh lime water taken to the another test tube. Note how long it takes for the lime water to turn milky. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? Now the second one is, take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture to the test tube fitted with the one hoop cork and fit to the cork. चलिए ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, जो बेसिक यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दूँ. देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक फ्रेश जो लाइम वाटर है वो लिया गया है, ठीक है. उस पर क्या किया है, एक जगह फ्रेश एयर भेजी गई है और एक जगह जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हम ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं वो हमने गैस उसमें फूकी है. तो जो लाइम वाटर है जिसमें हमने फ्रेश गैस डाली है तो उसका जो कलर है वो वैसा ही रहेगा, मतलब उसका कलर जो चेंज नहीं होगा. लेकिन जैसे ही हमने हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गैस है जो हम एक्सहेल कर रहे थे, जब हम वो चीज़ उसमें फूकते हैं तो क्या होता है, उसका कलर बदल जाता है क्योंकि लाइम वाटर जो है वो CO2 से रिएक्ट होता है. नाउ सी हियर we have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in the different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into a carbon dioxide and water. Some use the other pathways that do not involve the oxygen. In all cases, the first step is the breakdown of the glucose and 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called the pyruvate. This process takes place in the cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and the carbon dioxide. This process takes place in the yeast during a fermentation. Since the process takes place in the absence of the air, it is called the anaerobic respiration. Breakdown of the pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन जो है अलग अलग तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लिया जाता है, लेकिन कई तरह के न्यूट्रिशन यानी कई तरह का जो परफॉर्म हो रहा है फंक्शन, कई बार वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कई बार ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. तो जो भी न्यूट्रिशन परफॉर्म हो रहा है या जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का कम्प्लीटली, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. और सपोज मान लीजिए कहाँ जहाँ पे भी लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जा रहा है दैट विल बी नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है. इसके बाद जो है इसमें ये इथेनॉल में भी कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट होता है. ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट देखा होगा आपने. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. अब चलिए हम देखते हैं आगे. दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव हाँ, और एक और बात आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखिए, जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन साइटोप्लाज्म तो वो पायरुवेट बनाता है जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये जो यहाँ पे बेसिकली आपको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बताया गया है वेरियस बात पे, ये मैं आपको समझा रही हूँ, आप ये समझ लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो भी यहाँ पे एज अ थ्योरी मटेरियल बताया गया है. तो साइटोप्लाज्म में जब होता है तो वो पायरुवेट बनता है. पायरुवेट प्लस एनर्जी बताया जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी है. इसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ईस्ट में ये चीज़ होती है जो एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं. लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है जो कि इन मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी हो रही है. थर्ड जो बता रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी जहाँ की जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बन रही है. देखिए जो मिडिल वाला बताया है लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड, आपने कई बार नोटिस किया होगा जब आप कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो आपके जो पैर के मसल्स हैं या हाथ के मसल्स हैं उनमें दर्द होना शुरू होता है. क्या होता है, मसल्स की क्रैम्पिंग होती है और उसमें एक लैक्टिक एसिड है जो प्रोड्यूस होता है. जैसे ही वो प्रोड्यूस होता है तो आपकी बॉडी में ऐठन होना शुरू होती है. तो ये लैक ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई. अब इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, पैर दबाते हैं या जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है धीरे धीरे उस चीज़ का जो वैल्यू है वो कम होता चला जाता है और आपका दर्द कम हो जाएगा. तो इस तरह से बेसिकली ग्लूकोज वर्क कर रहा है. जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है. पायरुवेट जो है 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के साथ. ये एक बहुत बड़ा साइकिल है जो कि यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताया गया है तो आप इसे शॉर्ट में समझिएगा जिस तरह से इसका ब्रेक डाउन हो रहा है.
Now, the energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize the molecule called ATP, which is used for the fuel all the other activity in the cell. और ATP जो है खुद में एक चैप्टर है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता दूँ जो एक सिंपल वे में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है। ATP को आप एक एनर्जी समझ के चलिए, यानी जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं वो ATP है, ठीक है। नाउ और जो ATP है देखिए ये इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग अ राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब भी कोई चीज़ हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जा रही है, पच रही है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सारा कुछ क्या प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, यानी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई इट्स नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, now here we see since the aerobic respiration pathway depends on the oxygen, aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen। अब ये सारा चीज़ जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही हो रहा है और ये पूरी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन पे ही डिपेंड है, ना ऑक्सीजन पे डिपेंड है। तो इस बात की श्योरिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि जो इतना सफिशिएंट अमाउंट चाहिए हमें ऑक्सीजन का वो उसको मिले। We have seen that the plant exchange gases through the stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with the air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by a diffusion. Here they can go into cells, away from them and out into the air. In the direction of a diffusion depends upon the environmental condition, the requirement of the plant. At night, when there is no photosynthesis occurring, the CO2 elimination is a major exchange activity going on. During a day, CO2 is generated during a respiration used up for the photosynthesis, hence there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. अब देखिए यहाँ पे जो है प्लांट्स के रेस्पिरेशन की बात किया गया है, तो जो दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम पे जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर CO2 काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ज़्यादातर अमाउंट पे जो इनका एक्सक्रेशन है वो O2 हो जाता है और CO2 इनका अंदर ही लेवल पे यूज़ होता चला जाता है। लेकिन जब रात की बात की जाए तो रात के टाइम पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी वो जनरेट करना शुरू करते हैं ड्यूरिंग देयर रेस्पिरेशन व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। तो जो मेजर अमाउंट में है बेसिकली एक्टिविटी होना शुरू होती है। नाउ वी सी animals have evolved a different organ for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere, but the animal that live in the water need to use the oxygen dissolved in water. अब देखिए जो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है ऑक्सीजन यूज़ करें, पर अगर ऑक्सीजन में कंपेयर करूँ एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, जबकि अगर वाटर की बात करूँ तो वाटर में उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम मात्रा में डिजॉल्व है। ये जो है इनके द्वारा यूज़ किया जाता है। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism. Fishes take in water through their mouth and force it pass through the gills when there is a dissolved oxygen is taken up by the blood. अब देखिए अगर फिश की बात की जाए जो एनिमल जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे ही वो पानी अपने मुंह में भरते हैं तो विद द हेल्प ऑफ गिल्स जो प्रेशर पड़ता है इससे क्या होता है पानी बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन उनके ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। Now, the terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for the respiration. This oxygen is absorbed by a different organ in the different animal. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen-rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. So there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. In human beings, air is taken into the body through the nostrils, and the air passing through the nostrils is filtered by the fine hairs that line the passage. The passage is also lined with the mucus, which helps in the process in this process. From here, the air passes through the throat and into the lung and rings of the cartilage present in the throat.
दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। अब देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन बींग के रेस्पिरेशन की बात की गई, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास नॉस्ट्रल्स हैं, यानी हमारे पास जो नाक है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। हमारा जो इनटेक हो रहा है ऑक्सीजन का और जो एक्सहेलेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स किया जा रहा है। लेकिन जब भी हम कोई सांस लेते हैं या जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे ही हम एयर जो है इनटेक करते हैं, तो हमारे नॉस्ट्रल्स के पैसेज में आपने देखा होगा वहाँ पे बाल होती है, नाक के अंदर जो छोटी छोटी बाल होती है, फाइन हेयर्स होती है, ये हमारी कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें कई ज़्यादा जो माइक्रो कार्बन्स होते हैं या काफ़ी छोटे छोटे जो कण हैं, वो क्या होता है, बाल से टकरा के वो हम वहीं पे रुक जाते हैं और फ्रेश एयर वहाँ से अंदर पास होती है। इसके अलावा कई जो म्यूकस होता है वो भी इसी तरह से हेल्प करता है, यानी बेसिकली जो भी गंदगी है अगर हवा के अंदर या एयर के अंदर, वो चीज़ें टकरा के वहीं रह जाती है और उसके बाद जो फ्रेश एयर है वो बॉडी के अंदर जो है पास होती है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू अ स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इन balloon like structure which are called alveoli. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli contain an extensive network of the blood vessels. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result. अब देखिए यहाँ पे डायफ्राम की बात की गई है। क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में एक्सपांशन होता है, क्योंकि गैस जो है, जो एयर है, वो हम हवा है बेसिकली, वो क्या होता है, हम अपने फेफड़ों में भरते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सहेलेशन करते हैं, तो एक्सहेलेशन करने के बाद क्या होता है, फेफड़ा अपनी वापस की पोजीशन पे आता है और डायफ्राम फैल जाता है और एक्सहेलेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे उसके एक्सपांशन और जो श्रिंक होता है उसके बारे में बताया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं, जो भी हमारा ब्लड है वो क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन को पास करने का काम करते हैं, यानी वो एज अ ट्रैवल सपोर्ट वर्क करता है। The blood brings the carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveoli air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when the air is taken in and let it out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of the oxygen delivery to all parts of the body. Instead, the respiratory pigment take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to a tissue which are deficient in oxygen before the releasing it. In human being, the respiratory pigment is a hemoglobin which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles, and carbon dioxide is more soluble in water than the oxygen, and here hence the mostly transported is in the dissolved form in our blood. अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारा ब्लड जो है किस तरह से हमारा ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। हमारी जो बॉडी ऑर्गन है, बेसिकली सारी बॉडी ऑर्गन कुछ ना कुछ काम करती है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी कुछ काम करती है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म जब होता है तो बॉडी से एक तरह का केमिकल भी सिक्रेट होता है, प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए किसी काम की नहीं है, तो ब्लड क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए हमने इनहेल किया ऑक्सीजन का, वो हमारे कहाँ जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद वो हमारे हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसको कन्वर्ट करेगा, और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में जिस जिस ऑर्गन को ज़रूरत होती है वहाँ वो सप्लाई करेगा। सपोज़ जहाँ पे भी सप्लाई करता है, जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे वो ऑक्सीजन देता है, तो उस पार्ट से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बचे हैं वो हेमोग्लोबिन के में बेसिकली चिपक जाते हैं। जैसे ही उसका कम्प्लीटली सेचुरेशन होता है, वो उस चीज़ को लेकर ट्रैवल करता है वापस, यानी एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वापस हार्ट में जाता है। हार्ट से जाने के बाद ये वापस लंग में भेजा जाता है, उसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, एंड देन दिस प्रोसेस इज़ कैरी ऑन। ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली चलता चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए ऑक्सीजन के कंपेयर में इसलिए काफ़ी इजीली जो है ये हेमोग्लोबिन के साथ ये बेसिकली सेचुरेशन इसका जो है काफ़ी फास्ट होता है, यानी बहुत जल्दी उसके अटैच होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड आई होप एवरी ऑफ योर डाउट इज़ क्लियर हियर। इफ़ यू हैव एनीथिंग विच यू हैवंट अंडरस्टूड, प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू फॉर द डे।